پہلا سلاطین 15واں باب۔ اور نبات کے بیٹے یربام کی سلطنت کے 18ویں سال سے ابیام یہودا پر سلطنت کرنے لگا۔ اس نے یروشلم میں 3 سال بادشاہی کی۔ اس کی ماں کا نام ماکا تھا، جو ابیسلوم کی بیٹی تھی۔ اس نے اپنے باپ کے سب گناہوں میں جو اس نے اس سے پہلے کیے تھے اس کی روش اختیار کی، اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ تھا، جیسا اس کے باپ داؤد کا دل تھا۔ باوجود اس کے خداوند اس کے خدا نے داؤد کی خاطر یروشلم میں اسے ایک چراغ دیا، یعنی اس کے بیٹے کو اس کے بعد ٹھہرایا، اور یروشلم کو برقرار رکھا، اس لیے کہ داؤد نے وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھا، اور اپنی ساری عمر خداوند کے کسی حکم سے باہر نہ ہوا، سوا ہاتی اوریا کے معاملہ کے۔ اور رہوبام اور یربام کے درمیان اس کی ساری عمر جنگ رہی، اور ابیام کا باقی حال اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا، وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں لکھا نہیں ہے۔ اور ابیام اور یربام میں جنگ ہوتی رہی، اور ابیام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور انہوں نے اسے داؤد کے شہر میں دفن کیا، اور اس کا بیٹا آسا اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور شاہ اسرائیل یربام کے 20ویں سال سے آسا یہودا پر سلطنت کرنے لگا۔ اس نے 41 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام ماکا تھا، جو ابیسلوم کی بیٹی تھی۔ اور آسا نے اپنے باپ داؤد کی طرح وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھا۔ اس نے لوتیوں کو ملک سے نکال دیا، اور ان سب بتوں کو جن کو اس کے باپ دادا نے بنایا تھا دور کر دیا۔ اور اس نے اپنی ماں ماکا کو بھی ملکہ کے رتبے سے اتار دیا، کیونکہ اس نے ایک یسرت کے لیے ایک نفرت انگیز بت بنایا تھا۔ سو آسا نے اس کے بت کو کاٹ ڈالا، اور وادی قدرون میں اسے جلا دیا۔ لیکن اونچے مقام ڈھائے نہ گئے، تو بھی آسا کا دل عمر بھر خداوند کے ساتھ کامل رہا، اور اس نے وہ چیزیں جو اس کے باپ نے نظر کی تھیں، اور وہ چیزیں جو اس نے آپ نظر کی تھیں، یعنی چاندی اور سونا اور زروف، سب کو خداوند کے گھر میں داخل کیا۔ اور آسا اور شاہ اسرائیل باشا میں ان کی عمر بھر جنگ رہی۔ اور شاہ اسرائیل باشا نے یہودا پر چڑھائی کی اور راما کو بنایا، تاکہ شاہ یہودا آسا کے پاس کسی کی آمد و رفت نہ ہو سکے۔ تب آسا نے سب چاندی اور سونے کو جو خداوند کے گھر کے خزانوں میں باقی رہا تھا، اور شاہی محل کے خزانوں کو لے کر ان کو اپنے خادموں کے سپرد کیا۔ اور آسا بادشاہ نے ان کو شاہ ارام بن حدد کے پاس، جو ہزریون کے بیٹے طائبر مون کا بیٹا تھا اور دمشق میں رہتا تھا، روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ میرے اور تیرے درمیان اور میرے باپ اور تیرے باپ کے درمیان عہد و پیما ہے۔ دیکھ، میں نے تیرے لیے چاندی اور سونے کا ہدیہ بھیجا ہے، سو تو آ کر شاہ اسرائیل بادشاہ سے عہد شکنی کر، تاکہ وہ میرے پاس سے چلا جائے۔ اور بن حدد نے آسا بادشاہ کی بات مانی، اور اپنے لشکر کے سردار کو اسرائیلی شہروں پر چڑھائی کرنے کو بھیجا،
और अयोन और दान और एबल, बैत मक्का और सारे किजत और नफ्ताली के सारे मुल्क को मारा। जब बाशा ने ये सुना तो रामा के बनाने से हाथ खींचा और तिर्जा में रहने लगा। तब आसा बादशाह ने सारे यहूदा में मुनादी कराई और कोई माजूर ना रखा गया। सो वो रामा के पत्थर को और उसकी लकड़ियों को, जिनसे बादशाह उसे तामीर कर रहा था, उठा ले गए। और आसा बादशाह ने उनसे बिन्यामीन के जिब्बा और मिस्फा को बनाया। और आसा का बाकी सब हाल और उसकी सारी कुव्वत और सब कुछ जो उसने किया और जो शहर उसने बनाए सो किया, वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं है। लेकिन उसके बुढ़ापे के वक्त में उसे पांव का रोग लग गया और आसा अपने बाप दादा के साथ सो गया और अपने बाप दादा के साथ अपने बाप दाऊद के शहर में दफन हुआ। और उसका बेटा यहोशिफ्त उसकी जगह बादशाह हुआ। और शाह यहूदा आसा की सल्तनत के दूसरे साल से यरूबाम का बेटा नदब इस्राएल पर सल्तनत करने लगा। और उसने इस्राएल पर 2 बरस सल्तनत की। और उसने खुदावंद की नजर में बदी की और अपने बाप की राह और उसके गुनाह की रविश इख्तियार की, जिससे उसने इस्राएल से गुनाह कराया था। और अखिया के बेटे बाशा ने, जो इश्कार के घराने का था, उसके खिलाफ साजिश की। और बाशा ने हेतून में, जो फिलिस्तियों का था, उसे कत्ल किया। क्योंकि नदब और सारे इस्राएल ने जब तून का मुहासरा कर रखा था, शाह यहूदा आसा के तीसरे ही साल बाशा ने उसे कत्ल किया और उसकी जगह सल्तनत करने लगा। और ज्यों ही वो बादशाह हुआ, उसने जोरबाम के सारे घराने को कत्ल किया। और जैसा खुदावंद ने अपने खादिम अखिया सेलानी की मारिफत फरमाया था, उसने योरबाम के लिए किसी सांस लेने वाले को भी, जब तक उसे हलाक ना कर डाला, ना छोड़ा। योरबाम के उन गुनाहों के सबब से जो उसने आप किए और जिनसे उसने इस्राएल से गुनाह कराया, और उसके उस गुस्सा दिलाने के सबब से जिससे उसने खुदावंद इस्राएल के खुदा के गजब को भड़काया। और नदब का बाकी हाल और सब कुछ जो उसने किया सो किया, वो इस्राएल के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं। और आसा और शाह इस्राएल बादशाह के दरमियान उनकी उम्र भर जंग रही। और शाह यहूदा आसा के तीसरे साल से अखिया का बेटा बाशा तिर्जा में सारे इस्राएल पर बादशाही करने लगा। और उसने 24 बरस सल्तनत की। और उसने खुदावंद की नजर में बदी की और योरबाम की राह और उसके गुनाह की रवश इख्तियार की, जिससे उसने इस्राएल से गुनाह कराया। पहला सलातीन 16वां बाब। और हनानी के बेटे याहू पर खुदावंद का ये कलाम बाशा के खिलाफ नाज़िल हुआ, इसलिए कि मैंने तुझे खाक पर से उठाया और अपनी कौम इस्राएल का पेशवा बनाया। और तू यरबाम की राह पर चला, और तूने मेरी कौम इस्राएल से गुनाह करा के उनके गुनाहों से मुझे गुस्सा दिलाया। सो देख, मैं बादशाह और उसके घराने की पूरी सफाई कर दूंगा, और तेरे घराने को नबात के बेटे योरबाम के घराने की मानिंद बना दूंगा। बादशाह का जो कोई शहर में मरेगा,
اسے کتے کھائیں گے، اور جو میدان میں مرے گا اسے ہوا کے پرندے چٹ کر جائیں گے۔ اور بادشاہ کا باقی حال، جو کچھ اس نے کیا اور اس کی قوت سو کیا، وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں لکھا نہیں ہے۔ اور بادشاہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور ترزا میں دفن ہوا، اور اس کا بیٹا ایلا اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور حنانی کے بیٹے یاہو کی معرفت خداوند کا کلام بادشاہ اور اس کے گھرانے کے خلاف اس کی ساری بدی کے سبب سے بھی نازل ہوا، جو اس نے خداوند کی نظر میں کی، اور اپنے ہاتھوں کے کام سے اسے غصہ دلایا، اور یربام کے گھرانے کی مانند بنا، اور اس سبب سے بھی کہ اس نے اسے قتل کیا۔ اور شاہ یہودا آسا کے 26ویں سال سے بادشاہ کا بیٹا ایلا ترزا میں بنی اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 2 برس سلطنت کی۔ اور اس کے خادم زمری نے، جو اس کے آدھے رتھوں کا دروگا تھا، اس کے خلاف سازش کی۔ اس وقت وہ ترزا میں تھا، اور ارزا کے گھر میں، جو ترزا میں اس کے گھر کا دیوان تھا، شراب پی پی کر متوالا ہوتا جاتا تھا۔ سو زمری نے آسا شاہ یہودا کے 27ویں سال اندر جا کر اس پر وار کیا، اور اسے قتل کر دیا، اور اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا۔ اور جب وہ بادشاہی کرنے لگا تو تخت پر بیٹھتے ہی اس نے بادشاہ کے سارے گھرانے کو قتل کیا، اور نہ تو اس کے رشتہ داروں کا اور نہ اس کے دوستوں کا کوئی لڑکا باقی چھوڑا۔ یوں زمری نے خداوند کے اس سخن کے مطابق جو اس نے بادشاہ کے خلاف یاہو نبی کی معرفت فرمایا تھا، بادشاہ کے سارے گھرانے کو نابود کیا۔ بادشاہ کے سب گناہوں اور اس کے بیٹے ایلا کے گناہوں کے سبب سے جو انہوں نے کیے، اور جن سے انہوں نے اسرائیل سے گناہ کرایا، تاکہ خداوند اسرائیل کے خدا کو اپنے باطل کاموں سے غصہ دلائیں۔ اور ایلا کا باقی حال اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا، وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں۔ اور شاہ یہودا آسا کے 27ویں برس میں زمری نے ترزا میں 7 دن بادشاہی کی۔ اس وقت لوگ جبتون کے مقابل، جو فلسطینیوں کا تھا، خیمہ زن تھے۔ اور ان لوگوں نے جو خیمہ زن تھے، یہ چرچا سنا کہ زمری نے سازش کی اور بادشاہ کو بھی مار ڈالا ہے۔ اس لیے سارے اسرائیل نے عمری کو، جو لشکر کا سردار تھا، اس دن لشکرگاہ میں اسرائیل کا بادشاہ بنایا۔ تب عمری اور اس کے ساتھ سارا اسرائیل جبتون سے روانہ ہوا، اور انہوں نے ترزا کا محاصرہ کر لیا۔ اور ایسا ہوا کہ جب زمری نے دیکھا کہ شہر سر ہو گیا، تو شاہی محل کے محکم حصہ میں جا کر شاہی محل میں آگ لگا دی اور جل مرا، اپنے ان گناہوں کے سبب سے جو اس نے کیے، کہ خداوند کی نظر میں بدی کی اور یربام کی راہ اور اس کے گناہ کی روش اختیار کی جو اس نے کیا، تاکہ اسرائیل سے گناہ کرائے۔ اور زمری کا باقی حال اور جو بغاوت اس نے کی سو کیا، وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں۔ اس وقت اسرائیلی 2 فریق ہو گئے، آدھے آدمی جینت کے بیٹے تبنی کے پیرو ہو گئے تاکہ اسے بادشاہ بنائیں، اور آدھے عمری کے پیرو تھے۔ پر جو عمری کے پیرو تھے، ان پر جو جینت کے بیٹے تبنی کے پیرو تھے غالب آئے، سو تبنی مر گیا اور عمری بادشاہ ہوا۔
शाह यहूदा आसा के 31वें साल से उमरी इसराइल पर सल्तनत करने लगा। उसने 12 बरस सल्तनत की। तिर्जा में 6 बरस उसकी सल्तनत रही, और उसने सामरिया का पहाड़ समर से 2 कंतार चांदी में खरीदा, और उस पहाड़ पर एक शहर बनाया, और उस शहर का नाम जो उसने बनाया था, पहाड़ के मालिक समर के नाम पर सामरिया रखा। और उमरी ने शहर की नजर में बदी की, और उन सब से जो उससे पहले हुए बदतर काम किए, क्योंकि उसने नबात के बेटे योरबाम की सब राहें और उसके गुनाहों की रविश इख्तियार की, जिनसे उसने इसराइल से गुनाह कराया, ताकि वो खुदावंद इसराइल के खुदा को अपने बातिल कामों से गुस्सा दिलाएं। और उमरी के बाकी काम जो उसने किए और उसका जोर जो उसने दिखाया सो किया, वो इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलम बंद नहीं। सो उमरी अपने बाप दादा के साथ सो गया और सामरिया में दफन हुआ, और उसका बेटा अखीयब उसकी जगह बादशाह हुआ। और शाह यहूदा आसा के 38 साल से उमरी का बेटा अखीयब इसराइल पर सल्तनत करने लगा। और उमरी के बेटे अखीयब ने सामरिया में इसराइल पर 22 बरस सल्तनत की। और उमरी के बेटे अखीयब ने जितने उससे पहले हुए थे, उन सबों से ज्यादा खुदावंद की नजर में बदी की, और गोया नबात के बेटे योरबाम के गुनाहों की रविश इख्तियार करना उसके लिए एक हल्की सी बात थी। सो उसने सैदानियों के बादशाह अस्तबल की बेटी एजबल से ब्याह किया, और जाकर बाल की परस्तिश करने और उसे सिजदा करने लगा। और बाल के मंदिर में, जिसे उसने सामरिया में बनाया था, बाल के लिए एक मज़बा तैयार किया। और अखीयब ने यसरियत बनाई, और अखीयब ने इसराइल के सब बादशाहों से ज्यादा जो उससे पहले हुए थे, खुदावंद इसराइल के खुदा को गुस्सा दिलाने के काम किए। उसके अय्याम में बैत एली एहियल ने यरहू को तामीर किया। जब उसने उसकी बुनियाद डाली, तो उसका पहलोठा बेटा इब्राहिम मरा, और जब उसके फाटक लगाए, तो उसका सबसे छोटा बेटा साहुजोब मर गया। ये खुदावंद के कलाम के मुताबिक हुआ, जो उसने नून के बेटे यशु की मार्फत फरमाया था। पहला सलातीन 17वां बाब। और एलिया तशेबी, जो जल्लाद के परदेसियों में से था, अखीयब से कहा कि खुदावंद इसराइल के खुदा की हयात की कसम, जिसके सामने मैं खड़ा हूं, इन बरसों में न औस पड़ेगी न मींह बरसेगा, जब तक मैं न कहूं। और खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजल हुआ कि यहां से चल दे और मशरिक की तरफ अपना रुख कर, और किरेत के नाला के पास जो यरदन के सामने है जा छिप, और तू उसी नाला में से पीना। और मैंने कौओं को हुक्म किया है कि वो तेरी परवरिश करें। सो उसने जाकर खुदावंद के कलाम के मुताबिक किया, क्योंकि वो गया और करियत के नाले के पास जो यरदन के सामने है रहने लगा। और कौए उसके लिए सुबह को रोटी और गोश्त, और शाम को भी रोटी और गोश्त लाते थे, और वो उस नाला में से पिया करता था। और कुछ अरसा के बाद वो नाला सूख गया, इसलिए कि उस मुल्क में बारिश नहीं हुई थी। तब खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजल हुआ कि उठ और सैदा के सारपत को जा और वहीं रह। देख, मैंने एक बेवा को वहां हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे।
सो वो उठकर सारपत को गया, और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा वहां लकड़ियां चुन रही है। सो उसने उसे पुकार कर कहा, जरा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊं। और जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा, जरा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेती आना। उसने कहा, खुदावंद तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे हां रोटी नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है। और देख, मैं 2 लकड़ियां चुन रही हूं, ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं, और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। और एलिया ने उससे कहा, मत डर, जा और जैसा कहती है कर, पर पहले मेरे लिए एक टिकिया उसमें से बनाकर मेरे पास ले आ। उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि उस दिन तक जब तक खुदावंद जमीन पर मी न बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा और ना तेल की कुप्पी में कमी होगी। सो उसने जाकर एलिया के कहने के मुताबिक किया, और ये और वो और उसका कुंबा बहुत दिनों तक खाते रहे। और खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो उसने एलिया की मार्फत फरमाया था, ना तो आटे का मटका खाली हुआ और न तेल की कुप्पी में कमी हुई। इन बातों के बाद उस औरत का बेटा जो उस घर की मालिक थी बीमार पड़ा, और उसकी बीमारी ऐसी सख्त हो गई कि उसमें दम बाकी न रहा। सो वो एलिया से कहने लगी, ऐ मर्दे खुदा, मुझे तुझसे क्या काम? तू मेरे पास आया है कि मेरे गुनाह याद दिलाए और मेरे बेटे को मार दे। उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझको दे। और वो उसे उसकी गोद से लेकर उसको बालाखाना पर जहां वो रहता था ले गया, और उसे अपने पलंग पर लिटाया। और उसने खुदावंद से फरियाद की और कहा, ऐ खुदावंद मेरे खुदा, क्या तूने इस बेवा पर भी, जिसके हां मैं टिका हुआ हूं, उसके बेटे को मार डालने के लिए बला नाजल की? और उसने अपने आप को 3 बार उस लड़के पर पसार कर खुदावंद से फरियाद की और कहा, ऐ खुदावंद मेरे खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि इस लड़के की जान इसमें फिर आ जाए। और खुदावंद ने एलिया की फरियाद सुनी, और लड़के की जान उसमें फिर आ गई, और वो जी उठा। तब एलिया उस लड़के को उठाकर बालाखाना पर से नीचे घर के अंदर ले गया और उसे उसकी मां के सपुर्द किया। और एलिया ने कहा, देख, तेरा बेटा जीता है। तब उस औरत ने एलिया से कहा, अब मैं जान गई कि तू मर्दे खुदा है, और खुदावंद का जो कलाम तेरे मुंह में है वो हक है।